So today we'll discuss the next part, that is a sub 2020 exam biochemistry paper 2. So the question was, state any four applications of enzyme linked immunosorbent assay. So this is a commonly asked question, and here we will discuss some examples of clinical applications. So it is commonly used for detection of hormones. The hormones, like any hormone which can be easily detected by enzyme linked immunosorbent assay, like human chorionic gonadotrophic hormone, FSH, LH, thyroid profile like T3, T4, TSH, insulins which are commonly detected, testosterone and estrogen. So here you can write any hormone which is commonly detected by ELISA. Vitamins like vitamin B12 and vitamin D. It is a commonly done for osteoporosis and vitamin B12 deficiency for anemia. It is used. Then metabolites like prostaglandin, which is easily detected by this ELISA. It is also used for detection of tumor markers like alpha fetoprotein, carcinoembryonic antigen, CA125 and CA15.3. So it is a commonly used technique. Then next one is a therapeutic drug monitoring. ये क्या होता है? Suppose patient is on barbiturates, patient is on morphine, digoxin. So the level of this drug which can be detected by enzyme linked immunosorbent assay. For diagnostic procedure, that is for detection of infection like HIV, hepatitis A, hepatitis B. So all this infection can be detected by the ELISA. So it was for 2 mark. You can write any four applications. The next question may be, state the difference between ELISA and रेडियो इम्यूनोएस्से. इन दोनों पे क्वेश्चन, इस टॉपिक पे क्वेश्चन पूछ सकते हैं जो अभी तक एग्जाम में नहीं आया है. So here, what is the radio immunoassay? Where we detect antigen, which is commonly used for detection for antibodies or antigen, where the antigen antibody complex can be detected by using radioisotopes. यहाँ पे हम antigen antibody complex का डिटेक्ट करते हैं radioisotope से. while यहाँ पे the antigen antibody complex detected with the help of enzyme, यहाँ पे हम enzymes यूज करते हैं. In case of radioisotopes, antigen is labeled with the radioisotope. Antigen जो है वो radioisotope से labeled है. While in case of ELISA, antibody is labeled with the enzyme. यहाँ पे एंटीजन यूज किया हमने, यहाँ पे एंटीबॉडी यूज किया. एंटीजन लेबल है रेडियोआइसोटोप से, एंटीबॉडी लेबल है यहाँ पे एंजाइम से. The labeling molecule is always radioisotopes in radioimmunoassay. While in case of this ELISA, the labeling molecule is always enzyme. यहाँ पे हम enzymes यूज करते हैं. रेडियोआइसोटोप से यूज किया है तो यहाँ पे इट इज अ मोर सेंसिटिव. रेडियो इम्यूनोएस्से इट इज अ मोर सेंसिटिव. वी कैन डिटेक्ट अ वेरी स्मॉल क्वांटिटी by this technique, while in case of ELISA it is a less sensitive as compared to radio immunoassay. रेडियो इम्यूनोएस्से के लिए हमें स्पेशली ट्रेन्ड टेक्नीशियन स्टाफ रिक्वायर्ड होता है बिकॉज वी आर हैंडलिंग रेडियोआइसोटोप्स. while in case of ELISA यहाँ पे हमें इतना स्पेशलाइज स्टाफ की रिक्वायरमेंट नहीं होती है. there is no need of some specially trained person, a common technician by some simple training he can perform ELISA. इन रेडियो इम्यूनोएस्से देयर इज अ रेडिएशन हैजार्ड से यहाँ पे हम रेडियो आइसोटोप्स हैंडल कर रहे हैं इसलिए यहाँ पे रेडिएशन हैजार्ड्स है. वाइल इन केस ऑफ एलाइसा यहाँ पे कोई भी रेडिएशन हैजार्ड्स नहीं है. ये इजीली हम परफॉर्म कर सकते हैं विदाउट एनी डिफिकल्टीज. तो ये डिफरेंस है एलाइसा और रेडियो इम्यूनोएस्से में. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, स्टेट द नॉर्मल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सीरम पोटेशियम आयन. और सेकंड क्वेश्चन है, व्हाई हाइपोकैलेमिया व्हिच इज इंड्यूस्ड ड्यूरिंग द मैनेजमेंट ऑफ डायबिटिक कोमा. सो नॉर्मल कॉन्सेंट्रेशन ये कॉमनली पूछा जाने वाला क्वेश्चन है. सो यहाँ पे सीरम पोटेशियम पूछा है. नाउ हियर we are discussing the normal range of serum sodium ion. It is 135 to 145 millimole per liter or 135 to 145 milliequivalent per liter. You can write this. Next one is the serum potassium ion. The normal range is 3.5 or 3.6 to 5.5 millimole per liter. This unit is very important. अगर तुमने यूनिट नहीं लिखा तो तुम्हारा मार्क वहां पे कट जाएगा. Then serum calcium, the normal range is 9 to 11 milligram per deciliter. Okay.
Then what are the methods which are used for detection of serum electrolyte? So here we use a ion selective electrode. Ion selective electrode, it is a commonly used technique. It is a universal method for detection of electrolyte. And another method, that is a flame photometer, which is used for detection of sodium ion and potassium ion. So इसके दो आंसर हो सकते हैं. Next question is why hypokalemia is induced during management of diabetic coma. Hypokalemia क्यों होता है जब हम डायबिटिक कोमा को मैनेजमेंट करते हैं? सो जब हम इंसुलिन ट्रीटमेंट यूज करते हैं, ट्रीटमेंट में नॉर्मली क्या होता है, जब डायबिटिक कोमा होता है तब हम वहाँ पे इंसुलिन का यूज करते हैं. तो जब इंसुलिन यूज करते हैं तो वहाँ पे पोटेशियम का रीडिस्ट्रीब्यूशन होता है. अब मतलब क्या रीडिस्ट्रीब्यूशन, मतलब नॉर्मली अब यहाँ पे स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट है हमारी ग्लूकोज और इंसुलिन. पेशेंट को हमें देना पड़ता है ग्लूकोज और इंसुलिन. जब हम ग्लूकोज और इंसुलिन देते हैं तो इंसुलिन क्या करता है, ग्लूकोज और पोटेशियम को इंट्रासेलुलर कंपार्टमेंट में भेज देता है. मतलब जो ब्लड में से सेल्स के अंदर ग्लूकोज और पोटेशियम की एंट्री कर देता है. इसकी वजह से हमारे पास जो पोटेशियम आयन है वो एक्स्ट्रा सेलुलर कंपार्टमेंट में कम हो जाता है और उसी की वजह से होता है हाइपोकैलेमिया. सो दैट इज अ कॉमनली सीन कंडीशन ड्यूरिंग मैनेजमेंट ऑफ डायबिटिक कोमा. ये पोटेशियम आयन क्यों कम होता है इसके मैनेजमेंट में, क्योंकि इंसुलिन ग्लूकोज और पोटेशियम को एक्स्ट्रा सेलुलर कंपार्टमेंट से इंट्रा सेलुलर कंपार्टमेंट में भेज देता है और उसी वजह से हाइपोकैलेमिया होता है. अब हाइपोकैलेमिया तो हो गया, तो तुम कैसे इसको प्रिवेंट करोगे? इसको हम इस ट्रीटमेंट के साथ पोटेशियम का सप्लीमेंट देंगे इंट्रावेनसली. उसी की वजह से क्या होगा कि हाइपोकैलेमिया नहीं होगा. ठीक है. So the question may be define anion gap or enumerate causes of high anion gap metabolic acidosis. So the difference between total concentration of measured cation and the difference of measured anion. So यहाँ पे पहले हम सोडियम पोटेशियम आयन और क्लोराइड एंड बाइकार्बोनेट आयन दोनों चारों मेजर करते हैं और इन दोनों का जो डिफरेंस है वो नॉर्मल है या हाई है ये देखते हैं. तो anion gap is equal to sodium ion plus potassium ion minus bicarbonate ion plus chloride ion. इन दोनों का जो डिफरेंस आएगा that is called as a anion gap. So the normal range है 8 to 12 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर. कौन सी कंडीशन में ये गैप बढ़ेगा इन मेटाबॉलिक एसिडोसिस, ऐसा क्वेश्चन है. तो इसका एक निमोनिक है, इट इज अ गोल्ड मार्क. सो अगर पेशेंट ने एक्सेसिव ग्लाइकॉल्स ले लिया, इथिलीन ग्लाइकॉल और पॉली प्रोपाइलिन ग्लाइकॉल, that is a glycol poisoning. It is commonly this compound commonly seen in our cough syrups. नेक्स्ट है ऑक्सोप्रोलिन. अगर पेशेंट को बॉडी में ऑक्सोप्रोलिन बढ़ गया तो भी मेटाबॉलिक एसिडोसिस होता है. अब हमारे पास है लैक्टेट. लैक्टिक एसिडोसिस अगर हो गया पेशेंट को, डी लैक्टेट और एल लैक्टेट लैक्टिक एसिडोसिस हो गया तो भी रिस्पॉन्सिबल फॉर इंक्रीज इन anion gap in metabolic acidosis. मिथेनॉल पॉइजनिंग या फिर इथेनॉल ओवर कंजम्पशन रिस्पॉन्सिबल फॉर मेटाबॉलिक एसिडोसिस. एस्पिरिन टॉक्सिसिटी, मतलब ओवरडोज ऑफ एस्पिरिन also responsible for high anion gap metabolic acidosis. Then in renal failure and diabetic ketoacidosis, again you will find high anion gap. तो इसका जो निमोनिक है गोल्ड मार्क. In this condition, there is an increase in level of anion gap, that is in a metabolic acidosis. The next question may be in which metabolic acidosis there is a normal anion gap. There are the four reasons: hyperalimentation, Addison's disease, renal tubular acidosis and diarrhea. The mnemonic is hard. यहाँ पे क्या है? The mnemonic is hard. That is hyperalimentation, Addison disease, renal tubular acidosis and diarrhea. Then next question is what is the recommended dietary allowance for niacin? नियासिन के लिए आरडीए कितना है और उसके क्या क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस है उस नियासिन डेफिशिएंसी के डिसऑर्डर्स के. So the recommended dietary allowance is 20 मिलीग्राम पर डे और ड्यूरिंग लैक्टेशन इसकी डिमांड बढ़ के ये 5 मिलीग्राम यहाँ पे हमें ऐड करना है, मतलब टोटल हुआ 25 मिलीग्राम पर डे.
Or what are the deficiency manifestation of niacin? As we know that it is because of the manifestation of pellagra. There are the 4Ds. यहाँ पे हम लिखेंगे डायरिया, डर्माटाइटिस, यहाँ पे डर्माटाइटिस में कैल्शियम नेकलेस आएगा, डिमेंशिया, एंड अगर इन तीनों को ट्रीट नहीं किया तो पेशेंट को डेथ हो सकती है. There are the 4Ds of pellagra. अब क्वेश्चन आ सकता है कि what are the causes of this niacin deficiency? तो पहला है डाइटरी डिफिशियंसी ऑफ ट्रिप्टोफैन. हमें पता है कि अगर हमें ट्रिप्टोफैन नहीं खाया तो बॉडी में नियासिन नहीं बनेगा. तो ट्रिप्टोफैन क्या होता है, अगर अगर हम 60 मिलीग्राम ऑफ ट्रिप्टोफैन लेते हैं तो हमारी बॉडी में 1 मिलीग्राम ऑफ नियासिन बनता है. सेकंड है काइन्यूरेनिनेज एंजाइम. ये एंजाइम हमें मिलता है ट्रिप्टोफैन मेटाबॉलिज्म में. अगर ये एंजाइम डिफिशिएंट है तो हमारा ट्रिप्टोफैन टू नियासिन का कन्वर्शन नहीं होगा. इसी वजह से हमारे पास नियासिन डिफिशिएंसी होगी. नेक्स्ट है हमारा आइसोनियाजिड थेरेपी. आइसोनियाजिड इट इज अ एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग और ये ड्रग इनहिबिट द फॉर्मेशन ऑफ पीएलपी, दैट इज अ पाइरिडॉक्सिल फॉस्फेट. अब ये पाइरिडॉक्सिल फॉस्फेट हमारे पास नहीं है, सो इट ब्लॉक्स द कन्वर्शन ऑफ ट्रिप्टोफैन टू नियासिन. हमारे पास ट्रिप्टोफैन है बट अगर हमारे पास पीएलपी नहीं है तो ट्रिप्टोफैन का कन्वर्शन नियासिन में नहीं होगा. और ये आइसोनिक एसिड इट इज एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग, ये पीएलपी का फॉर्मेशन ही नहीं होने देता है. तो इट इज अ साइड इफेक्ट ऑफ आइसोनिक एसिड, जहाँ पे पीएलपी नहीं बनेगा और पीएलपी नहीं बना तो ट्रिप्टोफैन का नियासिन में कन्वर्शन नहीं होगा. नेक्स्ट वन इज अ हार्ट नर्व डिसीज. यहाँ पे क्या होता है कि ट्रिप्टोफैन का जो एब्सॉर्प्शन होता है वही इम्पेयर्ड होता है. सो अगर ट्रिप्टोफैन नहीं है तो हमारे बॉडी में नियासिन नहीं बनेगा. एंड लास्ट वन इज अ कार्सिनोइड सिंड्रोम. इस सिंड्रोम में देयर इज अ इंक्रीज लेवल ऑफ सेरोटोनिन. अब सेरोटोनिन कहाँ से आता है? इट इज अ प्रोडक्ट ऑफ ट्रिप्टोफैन मेटाबॉलिज्म. अब कार्सिनोइड सिंड्रोम में जो सेल्स है उनका इट इज अ ट्यूमर वेयर इज अ इंक्रीज प्रोडक्शन ऑफ सेरोटोनिन. सेरोटोनिन कहाँ से बनेगा? ट्रिप्टोफैन से. तो सारा का सारा ट्रिप्टोफैन सेरोटोनिन बनाने में ही लग जाएगा और जो ट्रिप्टोफैन है वो नियासिन में नहीं कन्वर्ट होगा. इसी वजह से यहाँ पे नियासिन की डिफिशियंसी होगी. ठीक है, थोड़ा सिंपल है. इट कैन बी आस्क्ड. नेक्स्ट वन इज द व्हाई methotrexate एक्ट एज अ पावरफुल एंटी कैंसर ड्रग. ये सिंगल लाइन दी है, वासुदेवन में थोड़ा सा एक्सप्लेन किया गया है, ज्यादा कुछ डिटेल में नहीं दिया है. और नेम एनी टू pyrimidine एनालॉग दैट मिमिक स्ट्रक्चर ऑफ pyrimidine. pyrimidine के जैसे दिखने वाले स्ट्रक्चर कौन से हैं जो pyrimidine को रिजेंबल करते हैं? ऐसे कोई दो एग्जांपल दो. सो दिस methotrexate it inhibits dihydrofolate reductase. यहाँ पे देखो ये डाइहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज है, इसी को इनहिबिट करता है हमारा मिथोट्रेक्सेट. इट इज अ पावरफुल एंटी कैंसर ड्रग. तो आपको लिखना है कि इट इनहिबिट्स एंजाइम डाइहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज जो इनहिबिट करता है कन्वर्शन ऑफ डी यूएमपी टू डी टीएमपी. डी यूएमपी का कन्वर्शन डी टीएमपी में ये इनहिबिट करता है. और यहाँ पे एंजाइम है हमारा थायमिडिलेट सिंथेस. ओके, सो ये मिथोट्रेक्सेट सिर्फ इसी एंजाइम को DHFR दैट इज डाइहाइड्रोक्सी फोलेट रिडक्टेज को ही इनहिबिट करता है. इसी की वजह से ये जो कन्वर्शन है DUMP से DTMP का नहीं होता है. दैट्स व्हाई इट इज अ पावरफुल एंटी कैंसर ड्रग. ओके, देन व्हाट आर द pyrimidine एनालॉग. pyrimidine की जैसे रिजेंबल करने वाले स्ट्रक्चर कौन कौन से हैं? टू एग्जांपल देने हमें. तो एग्जांपल आर 5-fluorouracil, cytosine arabinoside and gemicidine. Gemcitabine. This is the drug which inhibits thymidylate synthase. तो दो एग्जांपल लिखो, 5-fluorouracil और cytosine arabinoside. देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज अ जीन थेरेपी. जीन थेरेपी क्या है और कौन कौन से वेक्टर्स यूज होते हैं जीन थेरेपी के लिए? सो हियर देयर इज अ इंट्रोडक्शन ऑफ जीन as that produce some therapeutic effect. Intracellular delivery of gene to generate a therapeutic effect. मतलब सेल के अंदर हम जीन डालते हैं टू करेक्ट सम एग्जिस्टिंग एबनॉर्मलिटी. अगर एक सेल के अंदर जीन की एबनॉर्मलिटी है
उसी की वजह से अगर कोई डिसीज मैनिफेस्ट होती है, तो हम यहाँ पे जो डिजायर्ड जीन है, जो अच्छा वाला जीन है, उसकी एंट्री हम सेल के अंदर करते हैं, जिसकी वजह से उसका जो थेरेप्यूटिक इफेक्ट है वो दिखे, बाय करेक्टिंग एग्जिस्टिंग एबनॉर्मलिटी। जो भी उसकी एबनॉर्मलिटी है वहां पे हम वो करेक्ट कर रहे हैं। तो इसके दो टाइप है, एक है सोमैटिक जीन सेल थेरेपी और दूसरा है जर्म सेल जीन थेरेपी। So in somatic gene therapy, gene is introduced into the somatic cells. Somatic cells के अंदर हम जीन को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। और जर्म सेल जीन थेरेपी इट इज अ ट्रांसजेनिक एनिमल्स में हम ये करते हैं। तो दो एग्जांपल तुम्हें याद रखने हैं। नेम द वेक्टर्स यूज फॉर जीन थेरेपी। दूसरा क्वेश्चन है कौन कौन से वेक्टर हम यूज करते हैं। तो दो टाइप है, वायरल वेक्टर और नॉन वायरल वेक्टर। वायरल वेक्टर के एग्जांपल है रेट्रोवायरल, लेंटिवायरल, HSV, that is a herpes simplex virus 1, adenoviral and alpha virus. These are the viral vector। और नॉन वायरल वेक्टर है हमारे पास लाइपोसोम एंड नेकेड डीएनए। दिस आर द एग्जांपल ऑफ नॉन वायरल। सो एग्जाम में तुम्हें लिखना है वायरल वेक्टर और नॉन वायरल वेक्टर, रेट्रोवायरल, लेंटिवायरल, HSV1, एडिनोवायरल एंड अल्फा वायरस। और नॉन वायरल के एग्जांपल है लाइपोसोम एंड नेकेड डीएनए। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी एप्लीकेशंस ऑफ जीन थेरेपी इन मेडिसिन के क्या एप्लीकेशन है। तो ये सारी की सारी कंडीशन अंडर ट्रायल है। इसमें पहला है हमारा कैंसर, फॉर द मैनेजमेंट ऑफ कैंसर वी यूज दिस टेक्निक। एंड एग्जांपल आर लंग कैंसर, कैंसर ऑफ हेड एंड नेक, यहाँ पे ये यूज हो रहा है। लंग कैंसर दैट इज अ स्मॉल सेल कार्सिनोमा एंड स्क्वैमस सेल कार्सिनोमा। नेक्स्ट वन इज द वस्कुलर डिसीजेज। जैसे कि कोई वस्कुलर डिसीज है जिसकी वजह से अगर स्केलेटल मसल को इश्यमिया हो रहा है या ब्लड सप्लाई नहीं पहुंच रहा है, या फिर कार्डियक मसल को इश्यमिया हो रहा है या ब्लड सप्लाई नहीं हो रहा है, सो ऐसी कंडीशन में हम वस्कुलर एंडोथेलियल ग्रोथ फैक्टर इंट्रोड्यूस करते हैं, उसके जीन इंट्रोड्यूस करते हैं, या फिर फाइब्रोब्लास्ट ग्रोथ फैक्टर इंट्रोड्यूस करते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे सर्कुलेशन हो और इनका जो इश्यमिया होने का जो प्रोसेस है वो कम हो जाए या ना हो। नेक्स्ट वन इज अ मोनोजेनिक डिसऑर्डर, जिसमें सिर्फ सिंगल जीन की डिसीज है। ऐसे कंडीशन में हम ये यूज कर सकते हैं। इसके एग्जांपल है सीवियर कंबाइंड इम्यूनोडिफिशियंसी। यहाँ पे एडिनोसिन डीएमाइनेज की डिफिशियंसी होती है। सो ये प्रॉपर्ली मैनेज किया गया है बाय जीन थेरेपी। दिस इज द फर्स्ट जेनेटिक डिसऑर्डर दैट वाज करेक्टेड बाय जीन थेरेपी। एंड सेकंड वन इज अ पार्किंसन डिसीज। पार्किंसन डिसीज भी हम यहाँ पे ट्रीट कर सकते हैं, मतलब इट इज अ ट्रायल। Next one is the write the principle of electrophoresis and state any two applications of electrophoresis. So electrophoresis is a technique in which there is separation of charged particle by migration under the influence of electric field। ये आपको definition रट्टा मारना है कि इस टेक्निक में the separation of charged particle or charged species in a supporting medium that moves under the influence of electric field। State any two applications of electrophoresis। कोई भी दो applications बताओ। ये पास टाइप है। इसमें है पेपर इलेक्ट्रोफोरेसिस, सेलुलोज एसिटेट इलेक्ट्रोफोरेसिस, अगारोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, स्टार जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस एंड पॉली अक्रिलामाइड जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। पेपर इलेक्ट्रोफोरेसिस में तुम लिख सकते हो सेपरेशन ऑफ पेप्टाइड्स, प्रोटीन्स, न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लियोटाइड्स एंड कार्बोहाइड्रेट डेरिवेटिव्स। कार्बोहाइड्रेट डेरिवेटिव्स हम यहाँ पे सेपरेट कर सकते हैं। Similarly, separation of glycoprotein, lipoprotein, hemoglobin, that is the work of this cellulose acetate electrophoresis। अगारोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस से हम सेपरेट कर सकते हैं प्रोटीन, लाइपोप्रोटीन एंड एल्डिहाइड आइसोएंजाइम्स। हम यहाँ पे ये सेपरेट कर सकते हैं। और स्टार्च जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस से हम आइसोएंजाइम्स ऑफ एल्डिहाइड एंड अल्कलाइन फॉस्फेटेज हम सेपरेट कर सकते हैं। और दिस polyacrylamide gel electrophoresis where separation of plasma proteins, like all plasma proteins can be separated by this gel electrophoresis। यहाँ पे हमें 5-6 ही दिखेंगे बैंड, बट इन केस ऑफ पेज यहाँ पे हमें more than 40 bands you can see। Enzymes and isoenzymes can be separated by this technique। Now here you can see enlist any 4 features of genetic code। ये कॉमन क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है।
You have to just write any four features of genetic code, that they are triplet codon, degeneracy, reductant, non-overlapping, unambiguous, universal, initiator codon, terminator codon. ये तुम्हें characteristic लिखने हैं. It is simple one. Explain underlying mechanism of microcytic hypochromic anemia. तो ये भी इसके बारे में थोड़ा सा बहुत ही कम इंफॉर्मेशन दी गई है वासुदेवन में. Copper is the integral part of ALA synthesis. Copper ही integral part of ALA synthesis का है. This key enzyme in a heme synthesis. That is the key enzyme in a heme synthesis. अगर कॉपर ही नहीं रहेगा तो अपटेक ऑफ आयरन भी नहीं होगा और इस एंजाइम को सपोर्ट भी नहीं करेगा. इसी वजह से आरबीसी का काउंट कम हो जाएगा और सेल की जो साइज है वो कम होगी. एचबी कॉन्सेंट्रेशन इट में बी मोर और लेस. इतना ही आंसर दिया गया है वासुदेवन में कि कॉपर इंटीग्रल पार्ट ऑफ एएलए सिंथेसिस है. कॉपर हेल्प करता है अपटेक ऑफ आयरन बाय नॉर्मोब्लास्ट एंड आरबीसी काउंट इज रिड्यूस और सेल साइज इज स्मॉल यहाँ पे. एंड एचबी कॉन्सेंट्रेशन इज मोर और लेस. यहाँ पे एचबी कॉन्सेंट्रेशन मोर हो सकता है या लेस हो सकता है. इतना यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है इस कंडीशन में. Then mention biologically important compound synthesized by glycine. कौन कौन से कंपाउंड है जो ग्लाइसिन से यहाँ पे बनते हैं? So answer is creatine phosphate and creatinine, glutathione. इसमें 3 अमीनो एसिड यूज होते हैं, ग्लूटामेट, सिस्टीन एंड ग्लाइसिन. ये 3 ही अमीनो एसिड यहाँ पे यूज होते हैं. Then purine न्यूक्लियोटाइड लाइक C4, C5 and 7 of purine ये कंट्रीब्यूट किया है हमारे ग्लाइसिन ने. ओके. और ग्लाइकोकोलिक एसिड और चिनोडीऑक्सीकोलिक एसिड और कीनोडीऑक्सीकोलिक एसिड ये भी हमारे ग्लाइसिन से बनते हैं. तो ये जो कंपाउंड है हमें मिलता है ग्लाइसिन से. सो यू हैव जस्ट मेंशन द नेम ऑफ कंपाउंड व्हिच इज प्रोड्यूस्ड बाय द ग्लाइसिन. ओके. सो दिस इज ऑल अबाउट योर BAQ. In next part we will discuss our SAQ of Biochemistry paper 2 summer 2020. So please like, share and subscribe to my channel. Thank you.